So let us take some examples which are based on the numerical which we have learned earlier and the conversion formula, that is from kilometer per hour to meter per second. So the question is, a car travels 200 meter in 10 seconds, then find out the speed in kilometer per hour. So here the question, the first we have to solve and find the speed in meter per second. Then we have to convert it into meter per second, because the examiner is asking speed in kilometer per hour. So we have to use the conversion formula also. So here is the solution. We know that given is distance, that is 200 meter. Distance given is in meter, and the time taken by the car to reach the destination is 10 seconds. So the examiner is asking us the speed in kilometer per hour. So there are two methods to find out the answer in kilometer per hour. The first method is to solve this equation, that is distance equal to speed in time, or solve for speed in meter and seconds by taking distance in meter and time in seconds. So we can calculate speed in meter per second, and finally we can convert speed in kilometer per hour by conversion formula. Or the second method is, first we have to convert this distance in kilometer or the time in hour, and then we can find out the speed directly in kilometer per hour. So we can calculate first speed in meter per second. This speed equal to distance upon time. Distance given is 200 meter and time is 10. So it is 20 meter per second. Speed comes out to be 20 meter per second, but we have to find speed in kilometer per hour. So we have to use the conversion formula, that is the speed 20 is multiplied by 18 by 5, because in order to convert meter per second into kilometer per hour, we have learned earlier that in order to convert meter per second, we have to multiply it by 18 by 5 kilometer per hour. So we can multiply 20 by 18 by 5, that is 72 kilometer per hour, and that is the answer. 72 kilometer per hour is the answer. And if examiner is asking us the speed in meter per second, then we can solve until it. 20 meter per second is the answer. And the second method is, first method and second method. Second method is, if examiner is asking about kilometer per hour, then first we have to convert the distance travelled in kilometer, that is 200 meter distance given, that is distance in meter. So in order to convert it into kilometer, we can divide it by 1000. So here comes out to be 0.2 kilometer. 0.2 kilometer. Again we can convert this time in hour, that is time given is in seconds, that is 10 seconds. So in order to convert it into hour, we can divide it by 3600, that is 1 upon 360 in hour, and simply we can find speed in kilometer per hour, that is we can find distance in kilometer and time in hour. So simply put,
speed equal to distance upon time. We can use the notation for distance is d and for time t, and for speed we can use notation s. Distance here is 0.2 kilometer. Okay, and the time is 1/360 in hour. So if we calculate this comes out to be 0.2 into 360, that is equal to 72 kilometer per hour. We have two methods, but the answer is same. Earlier we find and derive the formula for speed, time and distance. Now let us find out the actual relation between them, how they totally depend on each other. Actually speed totally depend upon time and distance, and similarly time depend upon speed and distance. So how they depend? So first we know that distance equal to time into speed. From now we will use the notation for speed, time and distance in order to reduce the time. And it is very convenient to use the notations in order to write distance, time and speed. It is very time consuming. So we know the formula, that is speed, distance equal to speed into time. It means distance directly proportional to speed, and time equal to distance upon speed. From this we say that time is inversely proportional to speed. Means if speed of the car or the person is more, then it will take less time to reach its destination. Let us take an example. If the speed of Shyam is 10 km per hour and it takes by the speed of 20 km per hour. Here time is in hour. So if the Ram travels with the speed of 20 km per hour, then it takes 10 hours to reach its destination. If we increase its speed by 20 km per hour, then it takes less time to reach its destination. Okay. Means they time and speed are inversely proportional. इस फॉर्मूले से अगर हम देखें, अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट ले लें, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, then we see that Ts equal to time into speed is constant. So we can write T1 S1 equal to T2 S2. This is the mathematical equation. So अगर किसी भी कार या किसी भी पर्सन को अगर वो S1 स्पीड से T1 टाइम लेता है तो S2 स्पीड से T2 टाइम लेगा. अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो यहाँ भी स्पीड कम करनी पड़ेगी. इस चीज़ का सिंपली मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर S1 हमने मान लिया 10, ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं, ये किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड कुछ भी हो सकता है. इसे टाइम लगता है 20 यूनिट. अगर स्पीड पहले 10 थी और अगर हमने 20 कर दिया तो यहाँ पे हमारा T2 कितना हो जाएगा 10. इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द इक्वेशन, मतलब अगर किसी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो वो कम टाइम कंज्यूम करेगी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, और अगर किसी की स्पीड कम है तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए. ये मोस्टली न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ आने वाले हैं. दैट इज T S
equal to constant. Let us discuss one numerical based on previous concept. We know that distance equal to speed into time. हमारा क्वेश्चन ये है कि A पर P है और B पर Q है, ठीक है। अब दोनों ने सोचा हम कहीं जाके मिलते हैं, तो P ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं 4 बजे और हम 6 बजे तक दोनों एक साथ किसी भी पर्टिकुलर पोजीशंस पे हम एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो P ने बोला ठीक है मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता हूँ, B ने बोला ठीक है मैं तुमसे कम स्पीड पे आऊँगा लेकिन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो मैं रखूँगा। तो दोनों में ये डिसाइड हो गया ठीक है हम लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि दोनों का टाइम कांस्टेंट है, मतलब दोनों जब बात किए और दोनों जब मिलने वाले हैं तब से लेके इन दोनों के बीच में टी टाइम ही रहेगा, मतलब दोनों टी टाइम के लिए चलेंगे। मान लो ये 4 घंटे में सी पे पहुंच जाता है तो बी भी 4 घंटे में सी पे पहुंचेगा। हालांकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी इज मोर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू। क्यों? क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो स्पीड है वो पी की ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी पी की ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर टाइम को कांस्टेंट कर दें तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड्स पे। अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। यही इक्वेशन हम इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है p का, स्पीड ऑफ p इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ q इज 30 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि p ने 40 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस ट्रेवल बाय p वो dp किया है। c तक चलने में p ने dp डिस्टेंस कवर किया है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय q फ्रॉम b टू c इज dq। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट है, इससे d1 अपॉन d2 इक्वल टू s1 अपॉन s2, या फिर यहां से क्या आ जाएगा d1 अपॉन s1 बराबर d2 बराबर s2। इसको चेंज करेंगे तो d1 अपॉन dt इक्वल टू s1 अपॉन s2 आ जाएगा। हमें क्या पता है, स्पीड का रेशो पता है, स्पीड ऑफ p अपॉन स्पीड ऑफ q, डिस्टेंस ऑफ p अपॉन डिस्टेंस ऑफ q, ठीक है। 4 अपॉन 3 इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ p एंड q, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया है, dp अपॉन dq दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय p अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय q, ठीक है। हमें टोटल डिस्टेंस पता है कितना है, 420, मतलब अगर हम दोनों साइड +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dp + 1 अपॉन dq, 4 अपॉन 3 + 1, ठीक है। हमें dp प्लस dq बनाना है, मतलब हमें टोटल डिस्टेंस पता है। हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है कि a से b के बीच में डिस्टेंस क्या है, ना हमें ये पता है कि b से c के बीच में डिस्टेंस क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है कि टोटल डिस्टेंस dp प्लस dq कितना है, 420 है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्वेशन और dp प्लस dq लाने के लिए हमने +1 किया है, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 7/3। हमें पता है dp प्लस dq कितना दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है, मतलब a से b के बीच में कितनी दूरी है, मतलब दोनों जब स्टार्टिंग पॉइंट पे थे तब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, कितना लेंथ था दोनों के बीच में। और हम ये जानते हैं कि dp प्लस dq कितना है, 420, तो 420 अपॉन dq, यहाँ से लिख दिया dp प्लस dq 420 और dq एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू 7/3। अगर हम dq के लिए सॉल्व कर लेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, 180, dq आ जाएगा 180, ठीक है। मतलब dq ने b से c के बीच में 180 किलोमीटर चल लिया है। कितना चल लिया, 180 किलोमीटर। अगर हमारे पास dq निकल गया है तो हमारे पास dp प्लस dq है, तो हम 420 में से 180 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dp आ जाएगा।
dp प्लस dq कितना दिया हुआ है 420 किलोमीटर। हमारे पास dp dq दिया हुआ है, अगर dp फाइंड करना है हमें तो कितना हो जाएगा 420 माइनस 180, 420 माइनस 180 कितना होता है 240 किलोमीटर। मतलब दोनों ने कितना ट्रेवल किया था टोटल 420, लेकिन P की स्पीड ज़्यादा थी 40 किलोमीटर पर आवर थी, इसलिए P ने डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल किया है। क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, अगर टाइम कांस्टेंट है। तो P ने 40 किलोमीटर पर आवर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 240, और Q ने 30 किलोमीटर पर आवर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 180। तो हम देख सकते हैं कि अगर स्पीड कम है तो डिस्टेंस ट्रेवल कम होगा, स्पीड ज़्यादा है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ज़्यादा होगा। पिछले इस टॉपिक पे एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कार है वो 14 घंटे में 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ डिस्टेंस चलती है, मान लो x, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर उसे 10 घंटे में ये वाली दूरी तय करनी है तो उसे कितना किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा। उसकी स्पीड क्या रहेगी कि वो 10 घंटे में x डिस्टेंस तय कर ले। मतलब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो S1 T1 कांस्टेंट है, मतलब स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट है। मतलब जो टाइम का रेशो रहेगा वो इन्वर्स हो जाएगा स्पीड के रेशो में। अगर T1 अपॉन T2 है तो वो हो जाएगा S2 अपॉन S1। टाइम गिवन कितना है 14, T2 कितना है 10, S2 कितना है T2 मतलब S2 जिसमें 10 लग रहा है उसमें क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, ठीक है। और S1 कितना रहेगा यहाँ पे 210, क्वेश्चन मार्क कितना आएगा 21 इंटू 14 280 294 किलोमीटर पर आवर। मतलब सिंपली ये स्पीड है, ठीक है। ये कितनी है, ये S2 है, ये स्पीड है इस कार की स्पीड। मतलब अगर 14 घंटे ले रही है मतलब ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब स्पीड कम है। अगर कम टाइम ले रहे मतलब स्पीड ज़्यादा है। मतलब बोल सकते हैं ये अल्टो है, ये ऑडी है, ठीक है। ये हो गई अल्टो पुरानी खटारा अल्टो, ये हो गई ऑडी। ऑडी की स्पीड ज़्यादा है इसलिए उसे कम टाइम लगता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x को तय करने में। ये पुरानी खटारा अल्टो है, इसको 14 घंटे लगते हैं उसी दूरी को 210 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट करने में, ठीक है।